Good morning, class 10th. We were doing the third chapter in commercial studies, that is advertisement and sales promotion, right? So in the previous video, I explained to you the meaning, features and objectives of advertisement. Today, I will try to explain you the importance and the merits of advertisement. Okay, let's begin. That advertisement plays a very important role in the market or in the economy also, right? So it plays a very important role. Basically, what is happening in the present scenario, the world is facing competition, a tough competition, and that is cutthroat competition. Now, what is cutthroat competition? Basically, cutthroat competition means to prove best. Okay, अपने आप को बेस्ट प्रूव करना, बाय हुक और बाय क्रूक. Everybody wants to be at the top. सब अपने आप को टॉप पे रखना चाहते हैं, right? So they want to prove themselves best that our product, our service is best for you. Just purchase or buy our product. Okay? So everybody is trying to prove themselves best. So in this scenario, the advertisement is playing a very important role. Okay? Advertisement not only gives the information and knowledge, it also helps in the development and the progress of businessmen, producers, retailers, okay, suppliers, okay, as well as customers also. ये सिर्फ प्रोड्यूसर्स, कस्टमर्स, प्रोड्यूसर, रिटेलर्स की हेल्प नहीं करते उनकी प्रोग्रेस में, बट एज वेल एज एडवर्टीजमेंट्स हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ कस्टमर्स ऑल्सो. हम पहले कहाँ कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते थे, अब हम अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, राइट? सो इन दिस वे द प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन, प्रोग्रेस हो रही है इकोनॉमी की. इकोनॉमी में कस्टमर्स भी आते हैं, रिटेलर्स भी आते हैं, प्रोड्यूसर्स भी आते हैं, राइट? सो दिस इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट गिव्स इंस्टेंट इंफॉर्मेशन, ओके, कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, ठीक है. सो प्रोड्यूसर को भी एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे किस तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करने चाहिए, राइट? सो इन दिस वे इट हेल्प्स इन टू द प्रोड्यूसर, कस्टमर्स ऑल्सो, कस्टमर्स को भी, एंड द सोसाइटी. लेट्स अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स इन ब्रीफ. फर्स्ट आई वॉन्ट टू गिव यू अ little mapping about this, that producer, the first point, how the producer get affected and how this advertisement is important for the producer. First point, meeting competition. Second, steady demand. Third, higher sales demand. Fourth, introduction of new product. Fifth, economics of scale. Sixth, goodwill. And seventh, employee moral. For customers, it provides convenience, education of consumer, lower prices, better quality, and consumer surplus. And to the society, employment generation, high standard of living, sustains the press, stimulates research and development, incentive to progress, and the last, art and culture. Now, I will explain you these points in detail, okay? Now, meeting competition. Meeting competition means कि this advertisement is helping the producer to meet the competition which is going in the market. मार्केट में जो कंपटीशन हो रहा है, अपने आप को बेस्ट प्रूव करने के लिए उसको क्या करता है, उसको प्रमोट करता है, उसको हेल्प करता है, उसको मीट करता है, मतलब मिलता है, कंपटीशन को कम्पीट करने में हेल्प करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, राइट? सो इन दिस वे अगर इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंच रही है तो डिमांड क्रिएट होगी. डिमांड क्रिएट होगी तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेलिंग भी इंक्रीज होगी. सेलिंग इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिक उस प्रोड्यूसर का प्रॉफिट अर्निंग बढ़ जाएगी, राइट? सो इन दिस वे इट हेल्प्स इन मीटिंग द कॉम्पिटिशन. फिर धीरे धीरे स्लोली दैट प्रोड्यूसर विल बी कैन प्रूव हिमसेल्फ बेस्ट इन द मार्केट. सो दिस एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स टू मीट द competition को मीट करने में हेल्प करता है. If the advertisement is attractive, then the customer will attract towards the particular product more, right? And it helps in capturing the market also. क्या करता है ये advertisement attractive हुआ, अच्छा हुआ, influencing हुआ, then it will help to capture the market. Market ज़्यादा से ज़्यादा capture हो जाएगा, right? So in this way it helps in meeting the competition. Second point is your steady demand. Steady demand means which advertisement creates and sustains regular demand for a particular product.
right? So for example, today or 15 years ago, the advertisement of Fair and Lovely, Parle-G, there are some products in the market whose advertisement is not of today, it's from 15 years ago, पहले से चला आ रहा है, राइट? सो एडवर्टीजमेंट क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को बनाए रखने में हेल्प करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कैडबरी, व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको कैडबरी चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया था, बिकॉज यू लाइक चॉकलेट मोस्ट, ठीक है? सो कैडबरी, when it was introduced in the market or amongst the customer, then it was introduced as a kids requirement, वो बच्चों की ज़रूरत को महसूस किया गया था, बट टुडे एवरीबडीज, ओके? अब क्या किया गया, उसका जो एडवर्टीजमेंट क्रिएट किया गया है एंड इट वाज रियलाइज, फिर बाद में उसकी प्रोड्यूसर ने ऐसा रियलाइज किया कि यार ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ बच्चों के लिए, इट इज़ फॉर एवरीवन। तो उसने क्या किया, एडवर्टीजमेंट एजेंसी से कंसल्ट किया और उस एडवर्टीजमेंट को और अपग्रेड करवा के बेस्ट करवाने की कोशिश की। अब क्या है, जो भी एडवर्टीजमेंट इज कमिंग ऑन टेलीविजन, ओके, सो बेसिकली दैट एडवर्टीजमेंट इज फॉर ऑल द एज ग्रुप्स। अब वो एडवर्टीजमेंट सबके लिए है। अब क्या हो रहा है, वो एडवर्टीजमेंट कैडबरी अब हम एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेशन भी यूज़ कर रहे हैं, एज अ सेलिब्रेशन यूज़ किया जा रहा है, दिवाली हुआ, राखी हुआ, राइट? सो व्हाट इज दिस, दे आर अपग्रेडिंग एंड दे आर सस्टेनिंग द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. So it helps to maintain the demand of the product. Okay, advertisement जितना अच्छा होगा, it will help to create or sustain the demand of the particular product or services, right? Next is your higher sales demand. Higher sales demand means basically, I know that it's clear to you that advertisement creates the demand in the market, right? In the previous video, I explained you the features of the advertisement. In that, one point was there, and the role of advertisement, that it creates the demand of particular product or services. ये क्या करता है, demand को create करता है, right? So in this way, if the advertisement is attractive, if it can influence the customer, then the demand of particular product will increase. क्या होगी, मार्केट में उसकी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, राइट? तो ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं, राइट? कि दैट इट इज क्रिएटिंग डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्रिएट कर रहा है। और जितनी डिमांड क्रिएट होती जाएगी मार्केट में, जितना ज़्यादा डिमांड किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की होगी, सेलिंग होगी तो प्रोडक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट मार्जिन है वो प्रोड्यूसर का बढ़ता जाएगा, राइट? सो बाय दिस वी कैन एनालाइज दैट हाउ इट इंक्रीज द सेल्स, क्लियर? तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोड्यूसर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट. क्लियर है? आई होप तुम लोग को समझ में आ गया, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, क्योंकि nobody knows that what is going in the what are the things are being produced in the economy, क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही, किसी को नहीं पता है, राइट? तो जब उसका एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाएगा, पहले सैनिटाइजर कौन यूज़ करता था, इतना बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, बट स्लोली ड्यू टू दिस पेंडेमिक नाउ इट इज़ एडवर्टाइज्ड. अब देखो कितने सारे एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, डिटॉल हो गया और पता नहीं कितनी कंपनीज, लाइफबॉय हो गया, ये सारे क्या है, सैनिटाइजर्स को उसकी डिमांड्स को क्रिएट कर रहे हैं, राइट? So in this way, the new products are introduced in the market. Okay. Next is economies of scale. Now, economies of scale, basically in your book, it's given that advertisement facilitates mass distribution of product or goods, right? It reduces dependence on middleman as dealer, as more willing to stock and sell well advertised goods. Now, economies of scale. कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? व्हेन ही और शी विल गेट द सेटिस्फैक्शन, राइट? और कोई डीलर कोई प्रोडक्ट्स को मार्केट तक क्यों पहुंचाएगा? जब उसे पता है कि उससे उसको बेनिफिट मिलेगा, राइट? सो क्या है कि जो एडवर्टीजमेंट है, इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर इन सच अ वे दैट डीलर्स ऑल्सो आर मोर विलिंग टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जो डीलर्स होते हैं, हर जोन में कुछ डीलर्स होते हैं किसी प्रोडक्ट के, ठीक है?
तो ये देखा होगा तुम लोगों ने कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स इज ऑल्सो देयर दैट डीलर्स, वी नीड डीलर्स, ओके। सो हर प्रोडक्ट के डीलर्स होता है, तो कोई भी डीलर तभी रिस्क लेगा जब वो जानता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेमस है एंड द कस्टमर्स आर कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ओके। सो nobody is interested in taking more risk, right? So they are dealers only, okay. So basically advertisement helps the dealers, okay, the middleman, to take the products from the producer, and this advertisement gives them information in the market and to the customer. तो डीलर्स क्या होता है, एक हद तक रेडी हो जाता है, ओके वी आर रेडी टू सेल योर प्रोडक्ट। तो ये क्या हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को हेल्प मिलती है और डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होता है, राइट। एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस सेम पॉइंट, मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेडी डिमांड लीड्स टू लार्ज स्केल एंड रेगुलर प्रोडक्शन। जब किसी भी प्रोडक्ट का मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है प्रोड्यूस हो रहा है, इट्स इन प्रोड्यूस्ड इन दिल्ली और उसके हर जगह डीलर्स है, हर जोन में डीलर्स है, तो मास प्रोडक्शन हुआ, मास प्रोडक्शन होगा तो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, राइट। अभी जैसे इस समय मास डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का रहा है, मास सैनिटाइजर, ओके, इन सब चीज़ों का मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, राइट। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एडवर्टीजमेंट क्या करता है, इन सब मास डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ें पहुँचे। क्लियर? नेक्स्ट इज योर गुडविल। I hope you remember that in classes we discussed about this goodwill के बारे में मैंने बहुत डिस्कस किया था, okay, and we did the debate also, right? So goodwill is a good reputation of any organization or a company, so it plays a very important role in making the image of any brand, any company. तो क्या करता है ये जो प्रोड्यूसर है, इट मेक्स अ गुडविल, ये गुडविल क्रिएट करता है, प्रोड्यूसर के लिए दिस एडवर्टीजमेंट क्रिएट्स द गुडविल, ये गुडविल को क्रिएट करता है, राइट। सो गुडविल क्रिएट होगी, गुड रेपुटेशन क्रिएट होगी, गुड रेपुटेशन क्रिएट होगी तो एवरीथिंग इज टोटली डिपेंड अपॉन डिमांड। सब कुछ कहाँ पे डिपेंड है, डिमांड पे। तो डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा होगी किसी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉय मोरल मीन्स by building reputation of the firm, advertising provides a sense of security to employee and improves their morale. अब this advertisement, ये advertisement क्या करता है, it increases and improves the morale of the employees, those who are working in that organization or firm, ठीक है। क्योंकि उनको पता चल जाएगा, एडवर्टीजमेंट जितना अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, उनको पता चल जाएगा कि यस हमारी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होगी एंड ऑटोमेटिकली वी आर सेफ। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में चल रहा है तो उसके एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं दे विल फील सिक्योर एंड सेफ एंड इट विल इंक्रीज देयर मोरल। उनका क्या होगा, ये जो मोरल है, ओके, सेल्स टीम में वो इंक्रीज करेगी, उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी कि यस वी आर सेफ, वी कैन डू मोर बेटर, राइट। Salesmen feel happy as their task becomes easier when the product and its producers are known to customer. Now here in this case, what happens when is any product, particular product is famous among the customer, then what will happen? Then the salesman and the persons and the producers and the laborers, those who are working in that particular organization, they will feel safe कि हमारा product जो है it's famous, it's known to the customer. ये क्या है, कस्टमर सभी जानते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, सो दे विल ट्राई टू डू इट इन अ बेस्ट वे। सो दिस इज ऑल द अबाउट द प्रोड्यूसर, ओके। नेक्स्ट इज कस्टमर, राइट। कस्टमर, वी नो दैट दे आर द किंग ऑफ द मार्केट, राइट। विदाउट कस्टमर द मार्केट इज zero, right? Because all the demands is created by the customer only. So they are the king and they are important element of the economy or market. So now let's see that how this advertisement is important for the customers, right? Convenience. The first point is convenience. Convenience means आसान हो जाता है. It becomes easy for the customer to purchase a particular product or services. उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसके पास बहुत सारे चॉइसेस आ जाते हैं. उसको पता चल जाता है कि yes, this product is there in the market, this product is wrong. So with all these aspects, it becomes easy for the customer to do the shopping. Okay.
कस्टमर के लिए बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को। अभी हमें कोई चीज़ पता ही ना हो, सो हम बहुत कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेयर वी शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट? बट इफ वी नो दैट yes, this product is there in the market and these are the features of this product, then automatically we will purchase that product. So convenience. Next is education of customer. Advertisement provides knowledge and information about the particular product and the new product in the market and what are the features of that product, right? क्या क्या features हैं इस product के, जैसे बहुत सारी पॉलिसीज के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, जैसे LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी. सो इन दिस वे दे आर जस्ट एजुकेटिंग द कस्टमर अबाउट द LIC कि LIC में ये फीचर्स हैं, ऐसा होना चाहिए अगर आप कोई चीज़ लेते हो, लाइक दिस, राइट? सो इट प्रोवाइड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज. नेक्स्ट इज लोअर प्राइसेस. लोअर प्राइसेस मीन्स बेसिकली अब क्या होगा, एडवर्टीजमेंट्स की हेल्प से जो मिडल मैन है, नाउ द कस्टमर इज डायरेक्टली कम इन कॉन्टेक्ट विद द प्रोड्यूसर, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, राइट? तो अगर मान लो मार्केट स्टैब्लिश हो गया तो कस्टमर दे विल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट. तो ये बीच में जो होलसेलर्स मिडल मैन्स आते हैं, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन दैट. तो हम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो कॉस्ट है प्रोडक्ट का, इट विल reduce and it will also help in basically lowering the price of the product also. मैंने तुम लोगों को कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंसेस भी बताए, राइट? सो ये क्या करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा. कॉस्ट रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विल ऑल्सो गेट रिड्यूसेस. ओके, नेक्स्ट इज बेटर क्वालिटी. इन एडवर्टाइजमेंट you are telling the features of particular product. Okay, if I have these two markers, then the advertising agency and the advertisers, they will try to advertise the features of this product. इसके merits बताएंगे, demerits नहीं बताएंगे. तो हम क्या है, customers उसके merits, उसके features को देख को attract होंगे. Then if it is not satisfying, तो क्या होगा, automatically उसकी market down हो जाएगी. So advertisements देखना, कभी भी उसके नीचे फिर condition apply लिख देता है, राइट? कि उससे कहीं उसकी रेप्यूटेशन पे आँच ना है, राइट? सो बेटर क्वालिटी प्रोवाइड्स. एडवर्टीजमेंट हमेशा ऐसी प्रोडक्ट्स का खींचते हैं जिसकी क्वालिटी बेटर. ओके, सो गुडविल मेंटेन करनी है भाई प्रोड्यूसर को, राइट? सो दे विल ट्राई टू प्रोवाइड द बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. सो दिस एडवर्टीजमेंट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इज देयर इन द मार्केट. ओके, नेक्स्ट, अगर एक नहीं देगा तो दूसरा इज अदर पर्सन, अदर प्रोड्यूसर इज अवेलेबल इन द मार्केट, कस्टमर विल गो देयर, राइट? नेक्स्ट इज कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस मीन्स द सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर विच द कस्टमर गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके, अगर कस्टमर को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, देन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल नॉट गो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज, राइट? So the satisfaction is the most important key element for this marketing. Okay, so customers का satisfaction बहुत ज़रूरी है. अगर उसको satisfaction नहीं मिलेगा, then automatically they will not purchase that product. So advertisement should be in such a way that it can attract the customer and the customer should get the satisfaction from that particular product. Okay, so this producer and customer. Next, to the society, how this advertisement gives benefit or important for the society. Society is the combination of different individuals, right? The first is employment generation. It generates the employment opportunity, right? In advertising, on an advertisement, many people are involved. For example, writing script, creating advertisements, designing. Okay, then all these things creates new employment opportunities in the society. So advertisement is important for the society also in creating employment generation. Okay, next is high standard of living. You know that if the per capita income, if the living style of the person increases, then automatically that economy will grow. Okay, so basically high standard of living, this advertisement time to time it basically improves the standard living of the people by introducing new products, new services to them,
ओके क्या करता है, टाइम टू टाइम एक नई वैरायटी और डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करता है टू द कस्टमर, सो दैट द कस्टमर अट्रैक्ट्स एंड परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इससे क्या होता है, लोगों के स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल, पहले फ़ैन कैसा होता था, सिंपल फ़ैन होते थे, राइट. अभी क्या है प्रेजेंट सिनेरियो में, विथ लाइट्स, विथ समथिंग डिफरेंट, विथ रिमोट, ओके, ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग. सो ये क्या है, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड लिविंग को इंक्रीज कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट इज योर sustains the press. I tell you one thing, that this advertisement is a source of income for these basically newspaper, then your television, all broadcasting, all the broadcasters also, radio, okay. So these advertisements are the source of income. तुम देखना न्यूज़पेपर में बहुत बहुत बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स आते हैं. अगर जितने ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स हैं, इसका मतलब दैट न्यूज़पेपर इज अर्निंग मोर, राइट. जितना बड़ा छोटा सा एक स्क्वायर, छोटे से स्क्वायर की 10,000, 20,000, 1 lakh, okay, depends upon the quality of that advertisement. So this is a source of income or revenue for this न्यूज़पेपर, रेडियोस, टेलीविजन. न्यूज़ तुम लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा और डिफरेंट टेलीविजन्स पे भी देखा होगा कि कुछ भी थोड़ा सा 2 मिनट का आया प्रोग्राम एंड आफ्टर दैट एडवर्टीजमेंट्स. व्हाट इज़ दैट, दैट इज सोर्स ऑफ इनकम. वो स्पॉन्सर्स हैं, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसके लिए पैसे मिलते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, राइट. सो जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट, वो प्रोग्राम को उतना ज़्यादा पे किया कर रहा है स्पॉन्सर, राइट. नेक्स्ट इट स्टिमुलेट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट. We talked so many times in the class about this, that stimulate research and development. We know that अगर हम सेम प्रोडक्ट कई सालों तक यूज़ करेंगे, बट आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वी गेट बोर्ड, राइट. अभी जैसे पार्ले जी कैसा था, कैसे स्टार्ट हुआ था, बट अब उसकी डिफरेंट टाइप्स की क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट्स आ गए हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स के योर बिस्किट्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मार्केट, राइट. देन योर फेयर एंड लवली, पहले कैसा प्रोडक्ट था, अब उसको धीरे धीरे इन्हेंस करके, उस पर रिसर्च करके उसको इन्हेंस किया जा रहा है, राइट. सो इन दिस वे इट स्टिमुलेट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर मार्केटिंग. हमें पता है कि ये मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट. रिसर्च, टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहना. नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स टू प्रोग्रेस. इंसेंटिव्स टू प्रोग्रेस मीन्स it forces to the individual to work hard and to earn more to get the particular product. हम सब क्या चाहते हैं कि यस ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये लेना है हमें, वो लेना है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये प्रोडक्ट है मार्केट में, हमें लेना चाहिए. अब उसके लिए क्या है, जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वांट्स टू अर्न मोर, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहिए, एंड इट विल शोज द प्रोग्रेस इन इंडिविजुअल्स लाइफ. सो एडवर्टीजमेंट इज लाइक एन इंसेंटिव टू प्रोग्रेस में भी हेल्प करता है इंडिविजुअल, तभी तो स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ती है, राइट. एंड लास्ट इज आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर मीन्स, फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन मेनी एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखेंगे कि किस तरह से आर्ट और कल्चर को भी ये बेसिकली एडवर्टाइज करते हैं. बहुत सारे एरियल के एड, बहुत सारे ऐसे एड्स दिखाते हैं जिसमें साउथ कल्चर, देन योर नॉर्थ, देन योर ईस्ट वेस्ट, सारे कल्चर्स का कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है. So it shows or advertise the different cultures also. It promotes, okay, art and culture. So these are the importance to the society. So advertisement, and it's important to consumer, producer and society. Now I hope that these points are clear to you, okay. In the next video I will explain the demerits of advertisement. Thank you so much.